friends, welcome to the platform of Darshanik. This is Akshay Kadam. So guys, today on this platform Darshanik, I am going to discuss with you UPSC's 2025 mains exams ethics paper. So we'll do some analysis of this paper, and I'm not going to do some general level abstract open-ended analysis. We will go question by question and we'll try to understand what was expected by UPSC from those questions, what you should have written, the technical points. So in this only I will give you question ka interpretation and some technical points that you should have used while writing the answer. Okay, but a detailed discussion of the questions I will upload on my app later on. Okay, so I have my Darshanik app. Okay, on my platform you will get the link below in the description. You can download that. There you have 150-hour very comprehensive course, and with the help of that course you could very easily deal this paper or any future papers of ethics. Okay, so how to introduce, how to frame main body up to conclusion, more detailed discussion will be uploaded on app. Okay, here I will give you the overview of all the questions and what points from app courses, notes, etc. Or from your database that you should have used. Okay, so in this lecture I will cover section AK questions. Case study part of this year's paper was very easy, very moderate case studies, very easily doable case studies. Okay, that part I will discuss separately about the case studies. So basically difficulty level of this paper was moderate, and this year's means exam, overall means exam was very sensible from my personal perspective. Questions were doable, because as I said ki in my SAK paper discussion also, those who haven't seen my essay paper ka 25 mains exam ka essay paper discussion, do watch that video also. The questions are of moderate level. You can differentiate between one who has studied and who hasn't studied, and this ethics paper was like of that level. Okay, of a very good moderate quality. Questions were extremely like linked with the syllabus. Some questions were kind of you will feel out of ethics paper from polity segment etc. But still, okay, with the basic GS का polity का knowledge also you could answer them. और यूपीएससी ने GS1 में एंड सोशल इश्यूज के पार्ट में, GS2 के पेपर में दे आस्क 4-5 इथिक्स के क्वेश्चंस. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड अदर क्वेश्चंस आल्सो, गुड गवर्नेंस के, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे चाहिए थे. और यहाँ के जो क्वेश्चन है पॉलिटी गवर्नेंस रिलेटेड, वो दे कुड हैव शिफ्टेड टू GS2 GS1, but doesn't matter. Overall ethics paper will help you tackle this paper also. Ethics paper subject study will help you with essay writing also, and such a random question they will ask in GS1, 2, 3 part. Okay, so first of all, and then as usual question का beginning, like last year AI के साथ they started the ethics paper first question. This year also with social media communication technologies and ethics they started the paper. So most of the question were from applied perspective. Core philosophy based questions were some quotations etc. And more focus was of the overall paper this year was more on a administrative ethics part. Philosophy and psychology पे they have asked very less questions. बट दैट्स व्हाट गाइज देन बहुत सारे पेपर के एनालिसिस में इतना ही बेसिक एनालिसिस देंगे. विल डिस्कस टेक्निकल पार्ट ऑल्सो एज वी गो अहेड क्वेश्चन बाय क्वेश्चन. बट गाइज इससे ये अजम्पशन मत बना लेना कि यूपीएससी ने एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स के ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए तो नेक्स्ट ईयर आई विल प्रिपेयर एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स मोर. अगले साल पेपर उल्टा आएगा. There will be hell lot of questions from philosophy part, hell lot of questions from psychology part, और बहुत कम क्वेश्चन आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स के पार्ट से. ओके, यूपीएससी डज दिस थिंग. सो इसलिए कोई भी ये रैंडम चीज है, उन्होंने कोई पैटर्न नहीं बोला कि इस साल हमने एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स से पूछ लिए तो अब यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स का ट्रेंड बन गया. ओके, सो रैंडम चीजों में पैटर्न मत ढूंढो. यू विल एंड अप डूइंग रैंडमनेस एरर. साइकोलॉजी में ये कंसेप्ट है. इट विल कॉस्ट यू वेरी बैडली. सारे सेगमेंट का पढ़ाई ज्यादा करो. रादर आई विल से नेक्स्ट ईयर मेंस के लिए फिलोसॉफी साइकोलॉजी सेगमेंट ज्यादा फोकस करो. एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स पे कम क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके, अब दैट्स माय प्रेडिक्शन. मे बी एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स पे ज्यादा आए भी. ओके, बट लेकिन इसके वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स कम पढ़ना ये मत करो, बट फिलोसॉफी साइकोलॉजी को इग्नोर मत करो नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए. सो दैट्स मेजर दिस. पिछले साल का सिलेबस एनालिसिस करके, पेपर एनालिसिस करके हमें क्या करना है, आगे का पेपर कैसे डील करना, दैट वी हैव टू लर्न. सो वी विल फोकस ऑन दैट एस्पेक्ट. सो दैट विल बी माय वन like suggestion. And don't make it again polity economy का पेपर, इकोलॉजी का पेपर.
जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल डू। हाँ, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि पूरे पॉलिटी के एंगल से लिखने थे, बट अदर देन दैट मोस्टली हर क्वेश्चन में दे हैव एडेड वर्ड, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में इथिकल चैलेंजेस, इथिकल डायलेमा। I will show you those questions so when they exclusively mention what is ethical challenges involved, ethical dilemmas involved, you have to stick to the ethics paper का angle more and more, okay? और मुझे बहुत एक्सपेक्ट था कि वॉर पे कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, okay? और इसलिए मैंने ऐप लेक्चर में एक रिकॉर्डिंग भी लिया था कि वॉर का यूटिलिटरियन डिओंटोलॉजिकल एंगल से एनालिसिस ऑफ द वॉर्स, वेदर वॉर आर जस्टिफाइबल और नॉट। तो वॉर पे क्वेश्चन तो आया, थोड़ा घुमा फिरा के आया, बट यस दे आस्क्ड क्वेश्चन ऑन इथिक्स एंड वॉर, ओके? और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी काफी प्रिडिक्टेबल थे। एक क्वेश्चन तो रिपीट ही हुआ, थोड़ा चेंज करके, अंडर यूटिलाइजेशन एंड मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। 2019 में उन्होंने वो क्वेश्चन पूछा था, मैंने भी ऐप कोर्स में उसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आई हैव अपलोडेड उसका आंसर इन द एंड ऑफ द पीपीटी। उस क्वेश्चन में उन्होंने रीजंस पूछे थे व्हाई फंड्स रिमेन अंडर यूटिलाइज, मिस यूटिलाइज्ड। इस साल ट्विस्ट किया उसको, रीजन के जगह पे उन्होंने पूछा कि सजेस्ट द मेजर्स। रीजन कोई उल्टा करो, मेजर्स बन गए। सो आराम से वो क्वेश्चन भी एज इट इज थोड़ा घुमा के स्मार्टनेस के साथ यू कुड इजीली टैकल। सो बेसिकली नाउ लेट्स गो ऑन डिस्कसिंग क्वेश्चंस, उसके आंसर्स, टेक्निकल पार्ट। ओपन एंडेड डिबेट का कोई फायदा नहीं, इट विल नॉट हेल्प यू गेट द प्रॉपर ग्रास्प और ग्रिप ओवर द पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन, in the present digital age, social media has revolutionized our way of communication and interaction. However, it has raised several ethical issues and challenges. Describe the key ethical dilemmas in this regard. So जब भी क्वेश्चन की ethical dilemma हो, ethical challenge हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव टोल्ड माय मेंटरशिप स्टूडेंट्स, अदर बैच के जो स्टूडेंट्स हैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम के, कि आपको सिर्फ हाईलाइट करना है, ये इसके वर्चेस, ये इसके वर्चेस, ये उस फॉर्मेट में यू कैन डिस्कस मोस्ट ऑफ द इथिकल डायलेमास। और सोशल मीडिया पे क्वेश्चन इथिकल एंगल से आना वॉज क्वाइट एक्सपेक्टेड, क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी एक ऐसे भी पूछा था, सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली सेल्फिश मीडियम। सो इनहेरेंटली सेल्फिश मीडियम क्यों है? इसमें आपको इथिकल एंगल ज्यादा रखना है। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, अब यहां पे कहीं पे भी माइंड इट, दे हैवंट मेंशन एनीवेयर, ओके, कि गवर्नेंस के लिए चैलेंजेस क्या है, इन जनरल चैलेंजेस लिखने, दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। सो गवर्नेंस का एक पॉइंट लिखो, ओके, चैलेंजेस में, कि दिस सोशल मीडिया का रेगुलेशन, कंटेंट रेगुलेशन एटसेट्रा, बट अदरवाइज सोशल implication, ethical implication in general, you have to discuss. So then what are the key ethical implication? If I would have written which points I would have focused, I'm just going to give you gist of the points. So basically guys, social media के ethical issues involved. One is privacy. अब ये तो आंसर हर कोई लिखने वाला है इजीली। So आप कितने ज्यादा लेवल पे उस स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्ट करते हो, डेप्थ पे, that will help you get a good marks. So privacy, impersonation and the deepfakes, उस पे एक 3-4 लाइन लिखो। देन मोरल रिलेटिविज्म, व्हाट इज राइट रॉन्ग, ओके, हर कोई अपना ओपिनियन कैन यूज, वही तो ऐसे था। सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली सेल्फिश मीडियम, हर कोई अपना प्रोपेगेंडा क्रिएट कर सकता है, अपनी ओपिनियन डाल सकता है, एंड ट्रूथ इज नॉट इन ब्लैक एंड व्हाइट, ओके, लॉट ऑफ देन मल्टीपल एंगल्स कैन बी प्रोमोटेड, प्रोपोगेटेड। देन स्पीड ऑफ ट्रैवल, दैट इज वेरी फास्ट, कोई रूमर हो, इट कैन स्प्रेड वेरी फास्ट, और उसके वजह से बहुत सारे मॉब लिंचिंग्स भी हुए। तो रूमर रिपोर्टिंग या रूमर स्प्रेडिंग, फेक न्यूज का स्प्रेड, ओके, मिस इंफॉर्मेशन कैन स्प्रेड वेरी वेरी फास्ट, ओके। देन ट्रूथ वर्सेस मिस इंफॉर्मेशन, यू कैन इंटेंशनली मैनिपुलेट, ओके, सेल्फिश मीडियम जो ऐसे पूछा था। प्रोपेगेंडा क्रिएशन इज वेरी इजीली पॉसिबल लोगों के लिए, एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ द फेक न्यूज, फेक न्यूज कैन गेट एम्प्लीफाइड वेरी इजीली, दैट इज ऑल्सो अनदर मेजर चैलेंज, ओके। उसके बाद कमोडिफिकेशन ऑफ डेटा विदाउट कंसेंट, ये हमारा जो डेटा है सोशल मीडिया एल्गोरिदम यूजिंग, एनालाइजिंग एटसेट्रा। फिर सोशल मीडिया में एआई आने के बाद जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम वर्क्स विद द बायस, ओके, एंड ये जो है इको चेंबर्स दैट क्रिएट कंफर्मेशन बायस, that is also you need to add. So algorithmic bias and echo chambers, and then commodification of data, that ownership, that is again one issue, ethical challenge. Then polarization in society, that is very easily possible because government it's very hard to regulate, like film industry, newspaper, etc. Social media ka regulation, content regulation, crores of social media accounts are like crores of newspaper, it's impossible for a government to regulate, but वो part end में लिखना challenges में governance के लिए. And then ethical concern of mental health, well-being, अभी जो नया term चल रहा है, this doom scrolling, okay, and
दिस जो डूम स्क्रोलिंग कर करके आपका जो ब्रेन रॉट हो रहा है, that is also mental health one issue. Then we excessive use of social media for communication etc. We get isolated from society, the loneliness etc. So these aspects also 6-7 पॉइंट पे एक दो लाइन लिखो, you will get very good marks. And then major challenges में रेगुलेशन, अब इसमें थोड़ा साइंस एंड टेक एंगल से भी लिखना. कंटेंट रेगुलेशन, ओके, रेगुलेशन बहुत सारे अलग अलग लेवल का होता है. सो ISPs का रेगुलेशन वी कैन इजीली डू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का रेगुलेशन वी कैन इजीली डू, बट कंटेंट का रेगुलेशन, दैट व्हाट यूजर्स आर राइटिंग द इंफॉर्मेशन का, दैट इज वेरी इम्पॉसिबल. सो कंटेंट रेगुलेशन वर्ड से यू शुड डील, कि मैंने जो पोस्ट लिखा उसका रेगुलेशन कैसे करोगे. यू कैन ब्लॉक, चलो कोई पायरेसी हो रही है, डीप फेक वीडियो चल रहा है, यू कैन रिमूव इट, ओके, बट और ओवरऑल यू कैन बैन एंटायर वेबसाइट, जैसे PUBG टिकटॉक किया, पूरा प्लेटफॉर्म बैन कर दो. बट पर्टिकुलर प्रोफाइल्स, पर्टिकुलर कंटेंट, पर्टिकुलर मैसेजेस, हर एक मैसेज को तो गवर्नमेंट रीड नहीं कर सकता, टेक्नोलॉजिकली इंपॉसिबल, ओके, मैन पावर वाइज भी इंपॉसिबल. उसके साथ सो चैलेंजेस को कंक्लूजन बनाओ और 50-60 वर्ड में चैलेंजेस लिखो. देन बॉर्डरलेस डेटा, भाई इंडियन गवर्नमेंट कैन रेगुलेट इंडिया का सोशल मीडिया प्रोफाइल, अमेरिका के सोशल मीडिया प्रोफाइल जो NRIs वहां से यूज करके प्रॉब्लम क्रिएट करे इंडिया में, हाउ वी कैन रेगुलेट दैट. तो वो एक इशू पे चैलेंज भी डिस्कस करो. एंड इंश्योरिंग फ्रीडम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई कुछ भी बक रहा है, ओके, सो इंस्टाग्राम हैज बिकम सॉफ्ट फोन इन अ वे, सो फ्रीडम तो आया, आर यू यूजिंग इट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक मेजर चैलेंज. सो इथिक्स के एंगल से ज्यादा लिखो इसको. एट रैपिड इनोवेशन विदाउट अकाउंटेबल गवर्नेंस, अब जिस रेट से सोशल मीडिया अपडेट हो रहा है, मेटावर्स आएगा, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, सोशल मीडिया पे भी नए नए जो अपडेट्स आते हैं, ओके, गिबली तो नहीं लेकिन वो भी नाउ इंटीग्रेटेड है इंस्टाग्राम वगैरह पे. सो AI का जो अपडेशन हो रहा है वेरी रैपिडली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, ओके, तो हमारे जो AI लुकिंग लाइक वॉलपेपर्स वगैरह हम जो अपलोड करें, ये सारा जो हो रहा है, सो द वे रैपिडली इट इज इवॉल्विंग, आवर पॉलिसीज, लॉज to control them, regulate them are not evolving at that rate. So इसके साथ basically you should have answered this question. Okay, बाद में मैं पूरे क्वेश्चन डिटेल में अलग से I will try to discuss. अभी मुझे ओवरव्यू देना है, okay, एक शॉर्ट लेक्चर में. So I will quickly go through those questions. Then second question, constitutional morality बहुत बार आ चुका है टॉपिक, और 2 बार, इस बार तो GS2 में भी आया, GS4 में भी आया क्वेश्चन, बट क्वेश्चन वाज अगेन देखना. और कल परसों ही मेरे एक मेंटरशिप बैच के स्टूडेंट ने इसका आंसर मुझे भेजा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का रिलेटेड क्वेश्चन. सो ये जो क्वेश्चन था मैंने प्रैक्टिस सेशन में भी इसी रिलेटेड क्वेश्चन को भेजा था, ओके, एंड सेम क्वेश्चन ओवरलैपिंग विद दैट UPSC आस्क्ड. सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट अ नेचुरल सेंटिमेंट बट प्रोडक्ट ऑफ सिविल एजुकेशन एंड एडहेरेंस टू द रूल ऑफ लॉ. इससे आप इंट्रोडक्शन करो, पहला पार्ट क्वेश्चन का. एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी for public servant, highlighting the role in promoting good governance and ensuring accountability in public administration. So explain the significance of constitutional morality for public servant. क्वेश्चन का टोन समझो, पब्लिक सर्वेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैसे मदद करेगी, हाउ इट विल हेल्प, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस टू एंश्योर गुड गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी. सो 2 पार्ट में आंसर लिखो. पब्लिक सर्वेंट के लिए टू रन अ गुड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैसे गाइड करेगा, एंड पब्लिक सर्वेंट के लिए टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैसे काम करेगा. सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एज अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस ब्यूरोक्रेट को समझ में आया, हाउ ही विल इंश्योर अ गुड गवर्नेंस एंड अ अकाउंटेबल गवर्नेंस. तो गुड गवर्नेंस में क्या क्या आता है, फेयरनेस, जस्टिस, एम्पैथेटिक गवर्नेंस, कंपैशनेट गवर्नेंस. तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आपको कैसे बताएगा. सो वंस यू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यू विल अंडरस्टैंड दैट ओके, एज अ गवर्नेंस, एज अ ब्यूरोक्रेट, इट्स माय ड्यूटी टू इंश्योर जस्टिस, फेयरनेस, यही मेरा जॉब का पर्पज है. एंड ब्यूरोक्रेट विथ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विल इंश्योर दैट. एंड ब्यूरोक्रेट who okay understands constitutional morality, he will understand okay constitutional morality is ultimate check on his power. और मैंने अकाउंटेबिलिटी के जो लेक्चर है मेरे ऐप कोर्स पे, उसमें एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी एंड इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, उसमें एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स आर इलेक्शन, RTI एटसेट्रा. इंटरनल अकाउंटेबिलिटी में सबसे टॉप मोस्ट मैकेनिज्म इज अ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. सो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बोल रहा है हर ऑर्गन्स शुड अंडरस्टैंड देयर पर्पस, वर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दैट मैंडेट, and bureaucracy should also understand who they are not decision maker,
They are neutral administrator to implement. Constitution makes it very clear. Decision makers are elected representative. So follow that mandate and work. You will work in a accountable manner. Okay. So accountability, ये जान लो, जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है उल्टी धमकी दे रहा है राहुल गांधी को, भाई यू अंडरस्टैंड कि अगर कोई सिटीजन डाउट रेस कर रहा है इलेक्शन प्रोसेस पे, एक्सप्लेन, जस्टिफाई, ओके, कि क्या इश्यूज है और उनके जो क्वेरीज है, एक्यूजिशंस है, गलत लग रहे तो प्रूव करो. बी अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स, ना कि या पॉलिटिशियंस. डोंट अटैक देम और डोंट उनको ही क्रिटिसाइज करो. सो दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल मॉलिटी विल टेल यू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू बेसिकली. तो उसमें ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉलिटी इज नॉट नेचुरल सेंटिमेंट बट अ प्रोडक्ट ऑफ सिविल एजुकेशन. इससे यू कैन स्टार्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल हैज टू बी टॉट. इंट्रोडक्शन में उससे स्टार्ट करो, फिर गुड गवर्नेंस का हाफ आंसर, अकाउंटेबिलिटी हाफ आंसर एंड देन कंक्लूड. सो स्टार्ट विथ सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉलिटी फॉर पब्लिक सर्वेंट दैट एक्ट्स एज अ गाइडिंग लाइट for his conscience. So constitutional morality will act as a guiding light and he will understand what is good governance, he will understand what is accountable governance, and for his conscience, whenever he is in a crisis of conscience, he is not understanding what is right, constitutional morality will act as a guiding light. Uske sath you can begin. Then good governance mein he will understand, once he understands the spirit of the constitution, he will understand how to ensure justice, equality, equity. He will understand to keep biases aside and ensure the legitimate interest of the people. Okay, be vocal for transparency. Then it will ensure responsible governance, which is good governance के पैरामीटर है. अब इससे पहले ये आंसर लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गुड गवर्नेंस में क्या आता है, जो मैंने आप लेक्चर में काफी डिटेल में डिस्कस किया गुड गवर्नेंस. सो वंस यू अंडरस्टैंड गुड गवर्नेंस के पैरामीटर, देन यू विल अंडरस्टैंड ओके हाउ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स कि ये करो, गुड गवर्नेंस करो, इक्वालिटी करो, इक्विटी करो. सो इक्वालिटी, इक्विटी आर पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस एंड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विथ आर्टिकल 14, 15, 16 विद दैट मैंडेट. ओके, और आपके आर्टिकल 21 एटसेट्रा हर जगह पे इक्वालिटी, इक्विटी के आर्ग्यूमेंट्स है. डीपीएसपी टॉक्स अबाउट जस्टिस विच इज अ गुड इंटीग्रल पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस. तो ये सारे एस्पेक्ट. आगे का जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, जुडिशियरी, वो अकाउंटेबिलिटी पे फोकस कर रहा है. तो वो भी आपको समझ में आया. यू विल बी एज अ ब्यूरोक्रेट मोर अकाउंटेबल. सो अकाउंटेबिलिटी के सेपरेट आंसर में लेजिटिमेट गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, ओके, एक्ट्स एज अ मोरल चेक ऑन अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स. कि इनडायरेक्टली यू अंडरस्टैंड बाय व्हाट इज माय पर्पस हियर इन डेमोक्रेसी, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मॉलिटी विल एक्ट एज अ वन काइंड ऑफ मोरल चेक कि okay, you are not doing this as per the morality of the constitution, and ensure legal, legitimate governance and democratic. Be answerable to the public, the politician, to the judiciary. That he will understand that he is a administrator. Okay, and govern in a neutral way. Explain their role as a neutral guardians. They are there to only execute the order. So that he will understand. And understanding this means being accountable to the politicians, to the judiciary, to the overall citizens. ओके, तो आपके पास कोई आरटीआई आता है, देन यू विल अंडरस्टैंड भाई आरटीआई को मुझे ईगो इश्यू नहीं बनाना, आरटीआई का मुझे आंसर देना है, बिकॉज दैट्स व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेक्ट्स मी टू डू, बी अकाउंटेबल टू द पीपल. सो व्हाट आवर ये जो है दिस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल का पार्ट सेज सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक. डेमोक्रेसी फॉर द पीपल or of the people, by the people. The republic, head of the state by the people. Socialism for the people. Secularism for the people. So everywhere constitution morality is telling you for the people. तो RTI आया ना, for the people, implement. E-governance, all these solutions for the people, implement. So that's how you have to link the answer. Then ये जो question है war का, quite a easy one. So war is a diplomacy by other means. क्रिटिकली एनालाइज. अब क्रिटिकल एनालाइज लिखा है तो डिसएग्री भी करना है क्वेश्चन से. द अबव स्टेटमेंट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्पररी जियोपॉलिटिकल, और दूसरा वर्ड है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, दोनों कीवर्ड के साथ आंसर लिखना है. सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वॉर इज अ डिप्लोमेसी बाय अदर मींस, एक वन टूल ऑफ डिप्लोमेसी. यस, देन आई एग्री, वॉर इज वन टूल ऑफ डिप्लोमेसी एज अ लास्ट रेसॉर्ट. एंड डिओंटोलॉजी इथिक्स भी क्या बोलता है, यूटिलिटी डिओंटोलॉजी इथिक्स, जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था ऐप कोर्स में, कि डिओंटोलॉजी के आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट एंड अगेंस्ट वॉर, दैट वॉर इज अ जस्टिफाइबल एज अ लास्ट रेसॉर्ट. भगवद गीता भी कृष्णा अर्जुन को यही बोल रहे थे, भाई सब कर लिया, 5 गांव भी लेने को तैयार था, सुन नहीं रहे कौरव तो मार डालो. सो एज अ लास्ट डिप्लोमेसी इज अ वॉर जस्टिफाइबल, इस एंगल से आपको लिखना है. एंड टू डिफीट द इलेजिटिमेट गवर्नेंस, जो डिप्लोमेसी को ओपन ही ना हो,
उनको सिखाने के लिए वॉर इज द ओनली solution. So you have to support that. So war as a last resort and last way of diplomacy that is there. But then okay, भले ये last resort हो and फिर उसको अब इस एंगल से में कि पुतिन के एंगल से आप लिख लो कि उसने बहुत ट्राई किया कि भाई यूक्रेन न्यूट्रल रहे न्यूट्रल रहे न्यूट्रल रहे न्यूट्रल रहे 10 साल से वो बोल रहे थे. दे वर वार्निंग दैट क्राइमिया के एक्विजिशन से उनका यही स्टैंड था. आज भी अगर यूक्रेन न्यूट्रल रहता है पुतिन विल बैक आउट. बट अगर ये सारा फेल हुआ तो उसको पुतिन इज आंसरेबल टू हिज ओन पब्लिक हिज ओन कंट्री. ही इन्वेडेड. या गाजा में भी ओके जब हमास ने अटैक किया इतने साल से हमास को डिसमेंटल करने का इजराइल जो बोल रहा था, पैलेस्टीन पीपल डिड नॉट टेक इट सीरियसली. और जब अटैक हुआ देन ऑब्वियसली इजराइल इज गोइंग टू रिसॉर्ट ओके एज अ लास्ट रिसॉर्ट दे डिड व्हाट दे हैव टू. सो डिप्लोमेसी एज अ लास्ट रिसॉर्ट जस्टिफाई करो. बट देन उसके पास व्हेन यू कंसिडर वॉर एज अ डिप्लोमेसी then obviously it is going to have a human cost, environmental cost, economic cost, and war as a even last resort. आपको critically analyze करना है. In nuclear AI weapon era, okay, it is very bad tool of diplomacy. और उसमें भी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से लिंक करने के लिए कि ये जो यूक्रेन रशिया का वॉर हो ओके जिस तरह से AI के अटैक्स हो रहे हैं ओके वॉर इज हैपनिंग यूजिंग मोर ऑफ ड्रोन्स. तो इसलिए वो वॉर ये जो मैंने इथिक्स लेक्चर में या एसे में AI और एसे के लेक्चर में एक पॉइंट बताया था. इलॉन मस्क ने जो लेटर लिखा था काफी 10 साल पहले इनको यूनाइटेड नेशन को बहुत सारे साइंटिस्ट ने टू बैन AI वेपन्स. व्हाई? बिकॉज AI वेपन्स आर कॉजिंग ओके दिस डिले दिस एबिलिटी टू एंटर द वॉरफेयर थ्रेशोल्ड टू एंटर द वॉर ये रिड्यूस हो रहा है. सैनिक नहीं मर रहे ना तो भेजो ड्रोन्स. और इसके वजह से इस टाइम में जब ह्यूमन कॉस्ट थोड़ी कम है इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट ज्यादा है वॉर की, टेक्नोलॉजी टूल्स आर बीइंग यूज्ड, देन एज अ लास्ट रिसॉर्ट पीपल विल एंगेज इन द लास्ट रिसॉर्ट वेरी फास्ट ओके. एंड देन डिप्लोमेसी विल टेक अ लिटिल बिट बैक स्टेज. किसको ही डिप्लोमेसी मान ले तो रियल डिप्लोमेसी, रियल एंगेजमेंट, रियल डिस्कशंस. एंड डिस्कशन में अपोज करने में ये पॉइंट भी लिखना है. एंड वंस यू रिसॉर्ट टू वॉर bringing back people to the table will be very difficult. Normal channels of diplomacy will never work now once you start as a last resort. Okay, and still unresolved conflicts and war से conflict कभी resolve नहीं होगा. Conflicts will remain unresolved and diplomacy में आप एक देश दूसरे पे अटैक करेगा so discussion engagement will not be there, so there will not be multilateral solution to the problems. इसके साथ आपको ये क्वेश्चन लिखना है. सो गाइज ऐसा मत सोचो कि आप इथिक्स का कोई टॉपिक पढ़ोगे एंड डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा. करंट अफेयर का रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, ये जो सारे बाकी क्वेश्चंस जो आप पढ़ रहे हो ये या फिर मेरे जो मेंटरशिप के बच्चे हैं या ऐसे इथिक्स बैच के बच्चे हैं अलग अलग लेक्चर्स में अलग अलग चीजें पढ़ाई है. सारा पुल आउट करके आपको आंसर लिखना आना चाहिए. नो टीचर, नो नोट्स, नो क्लास कैन गारंटी यू कि भाई मेरे यहां से पेपर सारा आएगा, सारे क्वेश्चंस आएंगे. But guys, these lectures will only make you confident how to face them and will give you different inputs. You need to be very smart to pull that out and write a good answer. और ये आर्ट ऐसे एक रात में डेवलप नहीं होती. You will have to do lot of question answer writing, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन का, ओपन एंडेड क्वेश्चन का, और फिर वो कर करके एक बार ट्रिक आ जाती है. अब देखना मैं सोया था 6 बजे पेपर आया ओके अभी 7:30 बजे ओके मैं ऑलमोस्ट 6:15 उठा. 6:30 के आसपास मैंने आंसर बनाना चालू किया पेपर लेके पीपीटी बनाना. एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट 8:15 दैट आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर ओके. सो 1 घंटे में मैंने सारे क्वेश्चन डाल के फटाफट मैं क्या आंसर लिखता उसकी लिस्ट बनाई. सो मैंने टेक्निकली 30 to 35 मिनट्स में मोस्ट ऑफ द इसके जो जिस्ट के पॉइंट्स है वो बना लिए. सो वंस यू नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन ना वो क्वेश्चन पढ़ के ही आपको ये पॉइंटर्स पुल आउट करना आना चाहिए. अब ये आपको काफी प्रैक्टिस से आएगा. दैट्स व्हाई यू हैव टू फोकस ऑन आंसर राइटिंग ट्रिमेंडसली इन दिस पेपर. देन नेक्स्ट, कीपिंग द नेशनल सिक्योरिटी इन माइंड. ये तो काफी इकोलॉजी, एनवायरमेंट इन बॉर्डर एरिया, डेवलपमेंट एंड अबाउट बॉर्डर एरिया, बेसिक इकोनॉमी टाइप क्वेश्चन है पूरा. So keeping the national security in mind, examine the ethical dilemmas related to controversies over environmental clearance of development projects in ecologically sensitive border areas in the country. Okay, but उसमें भी उन्होंने क्या बोला है? Ethical dilemmas. So what are the ethical dilemmas? So keeping the national security in mind, examine the ethical dilemma related to controversy over environmental clearance of development project.
इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। ये क्वेश्चन आना ही था और मेंटरशिप के स्टूडेंट को भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था, पर इथिक्स के एंगल से ना दिया हो, मैंने जीएस के एंगल से क्वेश्चन दिया था अबाउट चाइना में, अरुणाचल में जो डैम बन रहा है, ओके, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है वो, और हमने बहुत सारे क्लियरेंसेस दिए टू कंस्ट्रक्ट द डैम देयर, और एक पूरा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क या कोई बायोडाइवर्सिटी कोई ये भी है, वो पूरा टेक ओवर हो रहा है और 130-140 एकड़ का वो डिस्ट्रक्शन होगा। सो आई पर्सनली फील वो उस लाइन पे दे माइट हैव बिकॉज ऑफ दैट आस्क अ क्वेश्चन। एंड अभी भी ये जो था जो हमारा पहलगाम का अटैक जो हुआ, सो वहां पे भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को भी हमने वेपनाइज किया इन अ वे, वाटर का जो ये था डैम का वगैरह, इंडस वाटर ट्रीटी एक्सेट्रा। तो ऐसे मोर एंड मोर डैम्स इफ यू हैव, ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, सो बोथ why we need and we can't afford to leave our border areas undeveloped, poor, वरना वहां पे इंसर्जेंसी टेररिज्म फैलना काफी इजी होगा। अगर लोग पीपल आर मोर इंटीग्रेटेड विद द डेवलपमेंटल प्रोसेस, दे विल बी देन वर्क फॉर अ कंट्री मोर, बट पॉवर्टी विल देन एलिनेट देम। सो उनका इंटीग्रेशन, उस एंगल पे क्वेश्चन यू हैव टू टैकल। सो मेजर इथिकल चैलेंजेस क्या है कि सिक्योरिटी वर्सेस इकोलॉजिकल कॉस्ट स्पेशली इन हिमालयाज, देन प्रोटेक्शन ऑफ डेवलपमेंटल एसेट्स। पर आपने डेवलपमेंटल एसेट्स तो बना दिए, पर उसी पे अटैक हुआ तो क्या, तो उनका प्रोटेक्शन ये नया चैलेंज बन जाएगा फिर, क्योंकि क्रिटिकल एरिया में डैम बना दिया और डैम पे अटैक किया, बम डाल दिए, तो डैम पे टेररिस्ट अटैक हुआ तो दैट इज एडेड इथिकल चैलेंज। देन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, फिर वहां पे जब व्हेन यू डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, डिस्ट्रॉय माउंटेन्स, और वो जो फ्लड्स वगैरह कोई भी इश्यू आए, तो अभी एक फ्लड में हमारे पूरे सोल्जर्स भी मारे गए पूरे एवलांचे में, तो वो भी सिक्योरिटी चैलेंज है। फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे इंपैक्ट होगा एंड इंपैक्ट ऑन पीपल्स लाइव्स। देन टेरिटोरियल वल्नरेबिलिटी हैम्पर्स रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस, कॉम्प्रोमाइजेस सोवरेनिटी। देन अगर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ना हो तो वी वोंट बी एबल टू मोबिलाइज फोर्सेस रैपिडली, ट्रूप्स रैपिडली, एंड इफ यू फेल टू मोबिलाइज फोर्सेस रैपिडली, ट्रूप्स रैपिडली, देन ऑटोमेटिकली इट विल इंपैक्ट टेरिटोरियल vulnerability. Okay, it will make us territorially vulnerable, can threaten sovereignty. तो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट साइड में रखने पड़ेंगे, we have to give the clearances rapidly, and ethical duty to ensure safety of citizen, integrity in border area, जैसे पहलगाम का अटैक हुआ, and then integrational justice कि वहां की जो कम्युनिटीज है उनको भी इंटीग्रेट करो विद डेवलपमेंटल प्रोसेस। सो इन इंटीग्रेशनल जस्टिस, सो indiscriminate clearances may trigger deforestation, biodiversity loss, and landslides and displacement of local communities। तो ये जो प्रॉब्लम्स होंगे, लैंडस्लाइड्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, इसको भी मेंशन करो। तो ये थोड़ा लेस इथिक्स मोर इकोलॉजी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। एंड फिर कंक्लूजन में ये दोनों करके अगर रैपिडली डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए कंक्लूजन के साथ यू एंड कि ट्रांसपेरेंट EIA प्रोसेस, कम्युनिटी एंगेजमेंट जितना ज्यादा हो, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करो, एंड कंसल्टेशन विथ लोकल कम्युनिटीज वगैरह, एंड उनको कंपेंसेटरी रिहेबिलिटेशन, अफॉरेस्टेशन वगैरह वो गवर्नमेंट वेरी स्ट्रांगली करे कि वहां के लोग एलिनेट ना हो इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की वजह से, रादर दे विल गेट एक्सट्रीमली बेनिफिटेड। जैसे महाराष्ट्र में जो जैतापुर वगैरह का जो प्रोजेक्ट्स वगैरह जो चल रहे हैं, बहुत सारे लोकल कम्युनिटीज की वहां से प्रॉपर्टी लैंड गया, ओके, लेकिन उनको जॉब्स भी दिए, बट एट द सेम टाइम दे हैव बीन गिवन शेयर होल्डिंग्स इन द कंपनी एटसेट्रा, कि उनको भी बेनिफिट हो कंपनी के ग्रोथ से एटसेट्रा। तो इस तरह से यू हैव टू कम अप विद द म्यूचुअल बेनिफिशियल सोल्यूशन। देन ये पार्ट तो बहुत इजी आया था, क्वेश्चन 3, ओके, और जिन्होंने इथिक्स का क्लास किया है मेरा, दे विल बी वेरी इजीली हैंडलिंग दिस कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो 3 कोटेशंस कौन से आए थे देखना, पूरा एक इमोशनल इंटेलिजेंस पे ही क्वेश्चन है, एज इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ दिमाग नहीं लगाना। सो दोज हु इन ट्रबल, ओके, आर दोज हु इन ट्रबल, अनट्रबल्ड आर, यहां पे कॉमा होना चाहिए, विल ट्रबल इटसेल्फ। ओके, कुछ जगह पे मेरा स्पेलिंग मिस्टेक भी हुआ है, प्लीज इग्नोर दैट, क्योंकि मैंने काफी फास्ट वो क्वेश्चन के आंसर टाइप किए वगैरह। सो कहां पे भी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो, सो प्लीज डोंट माइंड दैट। सो दोज हु इन ट्रबल, अनट्रबल्ड आर, ओके, कि विपदा में भी जिनको कोई इमोशनली दोज हु आर स्टेबल आर, विल ट्रबल द ट्रबल इटसेल्फ, मतलब वो ट्रबल को ही एड्रेस कर देंगे, ट्रबल को ही ट्रबल कर देंगे, ट्रबल को सॉल्व कर देंगे। ओके, सो डजंट मैटर, ओके, what the statement says, don't get troubled by the statement, question is very easy, answer is
योर इमोशनल इंटेलिजेंस, स्टॉइसिज्म की थियरी मैंने पूरी पढ़ाई है क्लास में. बी स्टॉइक इवन इन ट्रबल सिचुएशन, देन यू विल कॉन्कर द ट्रबल. देन स्थित प्रज्ञ, ओके, देन ओनली जो अर्जुन को कृष्णा ने बोला था, बी स्थित प्रज्ञ, चंचल मन को मनमानी ना करने दो. ओके, देन यू विल हैंडल इवन वॉर एंड यू विल विन द वॉर इफेक्टिवली. रेजिलियंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस. अब इससे क्या होगा? सो क्वेश्चन का बिगिनिंग यू से दिस क्वेश्चन टॉक्स अबाउट ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स, इंट्रोड्यूस क्वेश्चन विद दैट, एंड देन हाउ दैट इफ यू हैव दिस क्वालिटीज, okay, if you don't get troubled in a trouble, then objective analysis of trouble, you will respond to the trouble, you will not react, okay, and you will have a rational comprehension of the problems. Okay, so spelling थोड़ा गलत हुआ है. So rational comprehension of the problems. So you will do proper analysis, in-depth analysis of the situation, and you will take a more better, sustainable, long-term decisions. So ये सारे इमोशनल इंटेलिजेंस के डिसीजन मेकिंग के क्या एडवांटेजेस होते हैं उसके साथ कंक्लूड करना है, हाउ यू विल एड्रेस दिस. सो वेरी इजी क्वेश्चन. देन ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माय जनरेशन इज दैट ह्यूमन बीइंग कैन अल्टर हिज लाइफ बाय अल्टरिंग हिज एटीट्यूड. विलियम जेम्स. अब ये जो क्वेश्चन है, अगेन डजंट मैटर किसका स्टेटमेंट है, क्या है. व्हाट दिस क्वेश्चन सीज, द मोमेंट यू रीड अ क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए इंट्रोडक्शन में क्या, व्हाट यू विल राइट. एटीट्यूड चैप्टर जो सिलेबस का है उसमें एक सब टॉपिक है, रिलेशन ऑफ एटीट्यूड विथ थॉट एंड बिहेवियर और इन्फ्लुएंस ऑफ एटीट्यूड ऑन थॉट एंड बिहेवियर. दिस स्टेटमेंट सेज एक्सेप्ट्स द फैक्ट दैट एटीट्यूड कैन इन्फ्लुएंस आवर थॉट्स, एटीट्यूड कैन इन्फ्लेक्ट आवर बिहेवियर. उसी के साथ आई विल इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन. ओके, सो साइकोलॉजी हैज प्रूव्ड दैट वे यू कैन इंट्रोड्यूस दैट एटीट्यूड आर अ सोशल पर्सनल कंस्ट्रक्ट. Attitudes are not inborn, we develop them with interaction with society, and our personal growth, they get developed, and attitude gets shaped by our thoughts and behavior. Attitude have very strong influence on our thoughts, on our behavior, and attitudes are malleable. Okay, and this statement also says that attitudes can be malleable, attitudes can be changed, and by changing the attitude, by thoughts, we can change, like lot of different attitude formation theories are, change theories are. By using that you can change your attitude, it's malleable, and individual, society and governance can also shape the attitude. And so individual can change his own attitude, society can change civic sense, civic attitudes, etc. Government can also change people's democratic attitude. और ये सारा change करके we can make some meaningful changes in people's lives. ओके, ये कोर बॉडी में, मेन बॉडी में आर्ग्यूमेंट करने आपको. और इसके बाद फिर कंक्लूजन में क्या करो कि क्वेश्चन में इंप्लिसिट असम्पशन इज दैट ह्यूमन बीइंग कैन अल्टर हिज लाइफ बाय अल्टरिंग हिज एटीट्यूड. देन हाउ एटीट्यूड्स कैन बी अल्टर्ड. तो मैंने जो 12-13 थियरीज दी है मेरे ऐप लेक्चर में एटीट्यूड चेंज की, ओके, सारे एनलिस्ट करो, सिर्फ उनके नाम एनलिस्ट करो, एंड thus कंक्लूजन में लिखो, वी अंडरस्टैंड दैट एटीट्यूड्स आर नॉट बायोलॉजिकली डिटरमाइंड, they are developed through socialization, and we can alter them and change our life by using different techniques, like सिर्फ कॉमा करके कंक्लूड करो. शो ऑफ योर नॉलेज, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कॉग्निटिव रेजोनेंस, इमिटेशन लर्निंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, पर्सुएसिव कम्युनिकेशन, सेल्फ परसेप्शन थ्योरी, ओके, हाइदर्स बैलेंस थ्योरी, एटसेट्रा. सारे वो यूज करो 8-10 सीरीज के नाम एंड कंक्लूड. सो वेरी इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. Then third, strength of society is not in its laws but in the morality of its people. Again, very straightforward question. मेंटरशिप बैच के जो बच्चे हैं उनको तो यही क्वेश्चन से मैं आंसर राइटिंग करवाता हूँ. डिफरेंस बिटवीन इथिक्स एंड मोरालिटी. सो व्हाट स्वामी विवेकानंद इज सेइंग, स्ट्रेंथ ऑफ सोसाइटी इज नॉट इन लॉ बट मोरालिटी. सारे लोग अगर गांधी अंबेडकर जैसे वो सड़क पे चलने वाले, दैट्स द ट्रू स्ट्रेंथफुल सोसाइटी, स्ट्रॉन्ग सोसाइटी. तो इसके साथ एग्री भी करो एंड डिसएग्री भी करो. अब क्वेश्चन में देखना यहां पे क्या लिया है, कोटेशन मीन टू यू इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. तो थोड़ा प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट भी आपको ऐड करना होता है इस क्वेश्चंस में, एक हाथ पैराग्राफ में. ओके, सारी चीजें मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा एक इस इंट्रोडक्टरी और एनालिसिस के लेक्चर में. सो क्वेश्चन इज इनडायरेक्टली इज ऑन इथिक्स एंड मोरालिटी का डिफरेंस एंड एक्सटर्नल रेगुलेशन ऑफ अ सोसाइटी थ्रू लॉज, और दैट इज नॉट गुड. व्हाट विवेकानंद इज सेइंग, okay, what Swami Vivekananda is saying, that internalized morality, okay, is more important. And if society ke people, all people in society have that internalized morality, people with strong character, strong habits, okay, then that society will be actually the good one. Then strength lies in value conscious members, society में ज़्यादा होने चाहिए, and more disciplined people, moral people, strong character के लोग, okay. And today
द वे सोसाइटी में वी आर वॉचिंग दिस सोशल क्राइसिस, सिंपल सिविक सेंस का जो क्राइसिस है, नॉट फॉलोइंग सिग्नल से लेके हर जगह पे, क्योंकि क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस दैट आर सोसाइटी इज फेसिंग टुडे, एंड मोस्ट ऑफ द क्राइसिस दैट वी आर फेसिंग टुडे आर मोरल इन नेचर देन लीगल इन नेचर. लॉज तो सारे हैं इन प्लेस, सिग्नल से सीसीटीवी है सब है, फिर भी सिग्नल ना फॉलो करो. लॉज आर देयर, ओके, देयर इंप्लीमेंटेशन और एडहिरेंस इज मिसिंग. So crisis today in India is more of a moral than the legal, ethical. Okay, and that's why this quote is very important that we need to focus on. Then automatically solution क्या है? Morality का development, value education, conscience development. Okay, उसमें लिखो कि इसकी जरूरत, but then conclusion में end में लिखो फिर कि it's a idealistic opinion. Okay, strength of society is not कि हर कोई बंदा मोरल हो, दैट इज वेरी आइडियलिस्टिक. सो भाई लॉज का फोर्स भी जरूरी है, बट वी शुडंट ओनली रिलाई ऑन लॉ, पैरेलली वी शुड फोकस ऑन वैल्यू डेवलपमेंट. इस एंगल से आपको दिस आंसर यू हैव टू कंक्लूड. सो वेरी परफेक्ट आंसर्स, तीनों क्वेश्चन बहुत इजी थे, बहुत अच्छे से यू कुड राइट, मास्टर एंड राइट द आंसर्स. देन फॉर एनी काइंड ऑफ सोशल री इंजीनियरिंग बाय सक्सेसफुली इंप्लीमेंटिंग वेलफेयर स्कीम्स, सिविल सर्वेंट मस्ट यूज रीजन एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन अ इथिकल फ्रेमवर्क. अब इसी लाइन पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर राइटिंग भी करवाया था मेंटरशिप बच्चों को कि इन गवर्नेंस इंपॉर्टेंस ऑफ IQ, EQ एटसेट्रा इन डिसीजन मेकिंग एंड एट द सेम टाइम इथिकल फ्रेमवर्क इन डिसीजन मेकिंग. सो यू नीड बोथ. अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि सोशल री इंजीनियरिंग, सोशल री इंजीनियरिंग से आपको समझ में आना चाहिए. क्वेश्चन टॉक्स अबाउट चेंजिंग द सोसाइटी के कुछ ओपिनियंस, बिलीव्स, एटीट्यूड, वैल्यूज ऑन से, एंड देन ऑटोमेटिकली सोशल इंजीनियरिंग करना है. देन चेंजिंग सोसाइटीज वैल्यूज मीन्स यू नीड टू देन टैकल ओके सेंसिटिव इश्यूज लाइक सुपरस्टिशंस या सोशल इश्यूज लाइक डाउरी एटसेट्रा या जेंडर इश्यूज. अब इसका री इंजीनियरिंग करना है यूजिंग वेलफेयर स्कीम्स. वेलफेयर स्कीम्स मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए महाराष्ट्र में तो है लॉ, बाकी स्टेट्स का मुझे पता नहीं. ओके, इंटरकास्ट मैरिज में गवर्नमेंट कंपेंसेशन देता है, बहुत सारे अमाउंट देता है, पैसे वगैरह, इंटरकास्ट मैरिज वगैरह होते हैं तो. सो इस काइंड का ओके जो इंसेंटिव बेस्ड भी वेलफेयर स्कीम हम रन कर रहे हैं टू इंश्योर सोशल री इंजीनियरिंग. ओके, तो ये सारे वेलफेयर स्कीम में सिविल सर्वेंट शुड यूज रीजन एंड क्रिटिकल थिंकिंग. तो आपको IQ, रीजन का क्या फायदा होगा, एंड इथिकल फ्रेमवर्क भी उसके साथ पैरेलली यूज करना है. और ये करते वक्त जस्टिफाई द स्टेटमेंट, तो आपको एक हाथ दूसरा एग्जाम्पल यूज करके जस्टिफिकेशन देना है. सो फॉर एग्जाम्पल ये जो मिड डे मील स्कीम में जो सोसाइटी में एक साथ सारे कास्ट कम्युनिटी के बच्चे बैठ के खाएंगे, इट्स अ काइंड ऑफ सोशल इंजीनियरिंग विथ वेलफेयर स्कीम एंड यू हैव टू हैंडल दैट. तो जब सिर्फ रीजन से, लॉजिक से, फियर ऑफ लॉ से यू कांट सॉल्व द एवरी प्रॉब्लम इन द सोसाइटी. Okay, along with rational logical appeal, you have to use emotional fear appeal. You have to be ethically understand attitude, sensitivity of the people towards social issues. और इसलिए साइकोलॉजी पेपर का नॉलेज ओके कैसे काम करेगा along with एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स का नॉलेज. सो फिलोसॉफी साइकोलॉजी पार्ट कैसे मदद करेगा ये इश्यूज समझने के लिए, सोशल इश्यूज, एंड वो नॉलेज यूज करके रैशनल क्रिटिकल थिंकिंग यूज करके हाउ यू कैन इंप्रूव योर परफॉर्मेंस ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम्स. ओके, सो इस एंगल से ओवरऑल आंसर कंपोज करना है. सो वेलफेयर स्कीम्स एंड सोशल री इंजीनियरिंग. ओके, उससे हम क्या कर रहे हैं? रिड्यूस इनइक्वालिटीज, एम्पावर मार्जिनलाइज ग्रुप्स, कम्युनिटीज, ओके, रिमूव सोशल इविल्स, ये सारी चीजें कर रहे हैं. इससे इंट्रोडक्शन करो क्वेश्चन का. देन रीजन एंड क्रिटिकल थिंकिंग. ओके, इसके फायदे क्या है? दैट इफ यू यूज रीजन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ओके, देन इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीजें इंप्रूव होंगी. बट देन उसमें लिखो कि इस पे ओवर एम्फेसिस करके अगर लोगों के कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड, ये चीजें ना समझ ले हम, ओके, सोशल नॉर्म्स, ये सारी चीजें इग्नोर कर दे, इट कैन बैकफायर. ओके, एंड दैट्स व्हाई इथिकल फ्रेमवर्क हमें जरूरी होगा. देन इथिकल फ्रेमवर्क हो तो फायदे क्या होंगे? देन वी विल बी एबल टू एंश्योर कि फेयरनेस, जस्टिस, ओके, रीजन लॉजिक से आपका इफिशियंसी इंप्रूव होगा, इफेक्टिवनेस इंप्रूव होगा, ओके, रिस्पॉन्सिवनेस इंप्रूव होगा, यू विल डिलीवर सर्विसेज फास्टर. इथिकल फ्रेमवर्क में you will understand, okay, who should get the benefits, more benefits of the scheme, etc. So fairness का एंगल, जस्टिस का एंगल. अब महाराष्ट्र में जो लाड़की बहन योजना है, अब उसमें 21-22 लाख फीमेल्स के अकाउंट्स ही फेक है, ओके, या जिन्होंने बेनिफिट्स लिए.
तो आपको किनको एक्चुअली टारगेट करो और किनको बेनिफिट्स दो, फेयरनेस, जस्टिस, ये समझ में आएगा, लोगों की नीड समझ आएंगी, एंड वी विल बी मोर एम्पैथेटिक, कंपैशनेट. जब एड दे रहे हो, वी विल नॉट बी लुकिंग एट देम बेगर्स. If you understand the ethical framework, okay, you will treat them as a beneficiaries, not a beggars, and you can understand their attitudes, what will be their reaction, acceptance of the policy, rejection of the policy, and sensitivity to social issues. Okay, ये सारी चीजें समझ में आएगी, and your social welfare programs will actually be more impactful, their effectiveness will increase tremendously. इस एंगल पे क्वेश्चन पूरा डील करना है. Then what are the major teachings of Mahavir? Explain their relevance in the contemporary world. अब तो ये क्वेश्चन पे मैंने एसे के लेक्चर्स में, इथिक्स में इतनी बार बात की है. अब उन्होंने लेकिन क्या बोला है? रिलीवेंस. और मैंने बहुत बार बोला था लेक्चर में, बुद्धा पे एक बार क्वेश्चन आया, रिलीवेंस ऑफ बुद्धिस्ट थॉट्स. सिर्फ आइडिया जान के फायदा नहीं, महावीरा के कौन से थॉट्स है, आज कैसे रिलीवेंट है, दैट यू नीड. और मैंने तो ऐसे लेक्चर में बताया कि गांधी पे पूरा ऐसे आएगा, दैट वी नीड गांधी मोर देन एवर टुडे. इस एंगल से आज कैसे जरूरी है. लास्ट ईयर में गुरु नानक जी पे क्वेश्चन आया था, उसमें भी यही था, कंटेम्पररी. तो कोई तो एक बंदा वो पकड़ ही रहे हर साल, ओके, एंड आस्किंग देयर दिस थॉट्स कंटेम्पररी रिलेवेंस. तो बहुत महावीरा पे तो मेरे लेक्चर में ऐसे इथिक्स के बहुत डिस्कशन मैंने ऑलरेडी किया है. गांधी पढ़ाते वक्त इथिक्स में बहुत डिस्कशन किया है. सारे थॉट्स एज इट इज वही लिखने हैं आपको, और मैं सारे कॉन्सेप्ट्स एग्जांपल के साथ ही बताता हूं आज के इश्यूज को लिंक करके. तो आपको तो जो बच्चे इथिक्स की बैच कर चुके हैं उनको तो पढ़ते ही 8-10 थॉट्स दिमाग में आ जाएंगे. सो अनेकांतवाद कॉन्सेप्ट सबसे पावरफुल महावीरा का आज बहुत जरूरी है टू डील विथ कॉन्फ्लिक्ट्स, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, क्राइसिस सिचुएशंस. अहिंसा, जो एनिमल एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, हॉरिबली ऑर्गेनाइज पोल्ट्री इंडस्ट्री में जो एनिमल का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. देन अपरिग्रह कंसेप्ट, मिनिमलिज्म, जो नेचुरल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उससे डील करने के लिए. अस्तेय का एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियलिज्म जो चल रहा है हमारा. सो अस्तेय, नॉन क्रेविंग, ओके, एंड नॉट स्टीलिंग, कि जानबूझ के दूसरों का लेबर एक्सप्लॉइट मत करो, दूसरों को या ये जो है रिसोर्सेज या दूसरों की चोरी भी, स्टीलिंग मनी, करप्शन एटसेट्रा, दैट इज अस्तेय का. एंड देन ब्रह्मचार्य, कमिटमेंट ओवर फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशन. ओके, सो ब्रह्मचार्य में कमिटमेंट और फिजिकल एस्पेक्ट्स. तो आज जो रिलेशनशिप क्राइसिस, ये जेनजी में जो कल्चर है बॉडी काउंट का, ओके, इंस्टेड ऑफ हैविंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म मीनिंगफुल कमिटेड रिलेशनशिप्स, ओके, वैल्यू बेस्ड रिलेशनशिप्स, तो ब्रह्मचर्य का कंसेप्ट टू डील विद दैट. 4-5 जो मुझे फटाक से दिमाग में आए, आई हैव गिवन दोस अलॉन्ग विद कंटेम्पररी एप्लीकेशन. देन लास्ट और 2-3 क्वेश्चन बाकी हैं. वन हु इज डिवोटेड टू वन्स ड्यूटी अटेन्स हाईएस्ट परफेक्शन इन लाइफ. ओके, एक स्टेटमेंट किसका है पता नहीं, लेकिन होगा तो ये कृष्णा का ही होना चाहिए, भगवद गीता का, व्हाट ही इज टेलिंग टू अर्जुन. तो एंटायर भगवद गीता में अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग क्या होता है. ओके, जिन्होंने ये क्वेश्चन और मेरे इथिक्स के पॉइंटर जिसको समझ में आया ना अच्छे से, तो जो हम प्रभु राम को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, एंड कृष्णा को युग पुरुष, कि एक आइडियल पुरुष, एक परफेक्टेड ह्यूमन बीइंग ही वाज. ओके, योगिक पर्सन एंड वेल बैलेंस्ड. ओके, कि कृष्णा की जो पर्सनैलिटी है, वी सी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, लव, डांस, म्यूजिक, ड्रामा, वॉर, करेज, द परफेक्टेड ह्यूमन बीइंग, व्हाट वी कॉल युग पुरुष. ओके, एंड सो वो एंगल से कि व्हाट दिस क्वेश्चन सेज कि वन हु इज डिवोटेड टू वन्स ड्यूटी, हु डज हिज ड्यूटी विथ कमिटमेंट, विथ स्पिरिट. ओके, व्हाट कृष्णा वाज टेलिंग टू अर्जुन टू डू, निष्काम, अनासक्त कर्म एटसेट्रा, उसके साथ इंट्रोडक्शन करो. एंड लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनालाइज दिस स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, कि वन ब्यूरोक्रेट शुड अंडरस्टैंड हिज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि यही मेरा काम है, यही मेरा जॉब है. ओके, एंड व्हाई ही शुड डू दैट, कि एज अ वन शुड बी डिवोटेड टू ड्यूटी दैट एंड अटेन परफेक्शन. एंड अलॉन्ग विद दैट, ये अगर वो करे तो करियर वाइज क्या फायदे, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इज ऑब्लाइज्ड टू डू सो, and as a perfect human being he should take that seriously. and secondly, इससे जो personal fulfillment आएगा, when you act as per your values, the duties. जो कांत का मैंने एग्जांपल बताया था कि पूरा सिटी कांत को देख के टाइमिंग एडजस्ट करता था. कांत was never late in his life, everything he used to do so punctually कि कांत को रास्ते पे चल के देख के people used to understand the time, people used to open the shops and close the shops. Okay, so that kind of perfect human being, that are पूरी सिटी मुझे देख के चलती है, दैट्स व्हाट, दैट विल मेक यू मोर हैप्पी. द पर्सनल फुलफिलमेंट दैट यू विल गेट बाय डूइंग योर ड्यूटीज विथ
कमिटमेंट. और यही भगवत गीता का जो ओपिनियन था, व्हाट कृष्णा वाज टेलिंग अर्जुन, कि बी अ परफेक्टेड ह्यूमन बीइंग, आदर्श पुरुष बनो, एंड व्हाट हाउ यू विल परफॉर्म योर ड्यूटीज एज अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, दे विल बी द स्टैंडर्ड फॉर अदर्स. और ड्यूटी इसकी कमिटमेंट के साथ करो, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज यू आर क्षत्रिय, यू ऑट टू डू इट, एंड डू इट विथ सो मच ऑफ कमिटमेंट, पर्सनल फुलफिलमेंट, कि डजंट मैटर तुम मर भी गए ना, यू विल रिमेन एज अ रोल मॉडल फॉर सोसाइटी. ओके, डजंट मैटर इवन इफ यू लूज द बैटल एंड डाई. सो दैट पर्सनल फुलफिलमेंट का एंगल, तो बेसिक इस एंगल पे ऐसे को जो डील करना है. सो देयर यू कैन टॉक अबाउट पर्सन लाइक गांधी, ओके, दैट ही ओनली वर्क विथ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, don't want any post, don't want to be PM or president, and perfect individual, duty, ethics. So professional obligation and moral obligation of duty, दोनों को, what this question says, sense of responsibility कि your professional obligation, do your duty, and personal fulfillment, moral obligation, that yes, this is my duty and I should do it. दोनों मैच हो, that's wow, then why it will be good. तो कोई गांधी का एग्जाम्पल देके, भगवत गीता का कॉन्टेक्स्ट लिख के you can begin your answer. Perfect individual who does his a part as a socially, as a individually, all responsibilities dharmas he do. Then sense of responsibility से काम करोगे तो क्या होगा, legal moral binding nature of duty. नहीं करोगे, why you can't escape duty, it can cause professional reprimand, etc., dismissal, suspension, etc. also. If you do it with sense of responsibility, career growth, appreciation, merits, rewards, etc., good track record. And when bureaucracy works with commitment, sense of trust enhances trust, okay, in governance, okay, responsibility in governance. Then sense of fulfillment जो आपको पर्सनल लेवल पे आएगा, so pleasure through actions and moral satisfaction, okay, you will be having like Kant, so that what आत्मसंतुष्टि, वो एंगल पे you can deal with this question. Then to achieve holistic development goal, civil servant acts as a enabler and active facilitator of the growth. आगे का क्वेश्चन छोड़ दो, इतना ही पार्ट पढ़ाना. जो मेरे बच्चे जिन्होंने इथिक्स की बैच की है, टेक अ पॉज दिस लेक्चर एंड थिंक, कौन से एस्पेक्ट पे क्वेश्चन में मुझे डिबेट करना है. ओके, सो इन अ क्लास वी हैव डिस्कस्ड डायनेमिज्म इन सिविल सर्विस, that today bureaucracy का काम is not just a regulator, okay, today you have the job of being a welfare bureaucrat, welfare bureaucracy का, and ये welfare bureaucracy का जो आपका काम है, उसके लिए you need to be a dynamic civil servant, enabler, facilitator of the growth, okay, actively engage and ensure the transformation, transformational leadership. ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था लीडरशिप स्टाइल्स में, that you have to be innovative leader, that you have to be responsive leader, that you need to be. फटाफट वैल्यूज दिमाग में आनी चाहिए, ये दो वर्ड पढ़ के ही. एंड अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू अचीव होलिस्टिक डेवलपमेंट गोल ऑफ सिविल सर्वेंट एक्ट्स एज टू अचीव अ होलिस्टिक डेवलपमेंटल गोल, सिविल सर्वेंट एक्ट्स एज अ एनेबलर एंड एक्टिव फैसिलिटेटर ऑफ ग्रोथ रादर देन रेगुलेटर. मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस नहीं करना, मैक्सिमम गवर्नमेंट भी है, मैक्सिमम गवर्नेंस भी है. व्हाट स्पेसिफिक मेजर यू विल यूज सजेस्ट. सो डायरेक्टली कि ब्यूरोक्रेसी को इतना डायनेमिक बनाओ, तो जो भी मैंने वहां पे डिस्कस किया था, हाउ यू कैन मेक योर ब्यूरोक्रेसी मोर डायनेमिक, मोर इफिशिएंट, मोर रिस्पॉन्सिव. ओके, सारे पॉइंटर यहां पे लिखने. ओके, हाउ यू विल मेक सच अ ब्यूरोक्रेसी विच विल नॉट ओनली रेगुलेट, स्टेटस को इस लोग नहीं चाहिए हमें. ओके, दैट मास्टर ओरिएंटेशन के, सिविल सर्विस ओरिएंटेशन के लोग चाहिए. ओके, हु विल ट्रांसफॉर्म द ब्यूरोक्रेसी, इनोवेट द ब्यूरोक्रेसी, फैसिलिटेट द ग्रोथ. सो वेलफेयर ब्यूरोक्रेसी और रेगुलेटरी गवर्नेंस, इससे आंसर बिगिन करना है. डायनेमिक रिस्पॉन्सिव ब्यूरोक्रेसी की वैल्यूज इट टॉक्स अबाउट. देन उसके लिए ट्रेनिंग, देन हाउ यू कैन डू ईज ऑफ गवर्नेंस. अब ये गवर्नेंस, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा गलत हुआ. सो ईज ऑफ गवर्नेंस इंश्योर करो, सो ग्रोथ फैसिलिटेट होगी. ई गवर्नेंस से फैसिलिटेट करो ग्रोथ को. सिटीजन को एंगेज करो, डोंट सी एज अ आउटसाइड बेनिफिशियरी. Okay, look at them with respect, engage them and cause meaningful changes in their life. Ask them what they want, ask their needs, etc. Then decentralization, social audits. Then आप जितना गवर्नमेंट को डिसेंट्रलाइज करो, गांधी केस में मैंने बताया था कि डिसेंट्रलाइजेशन इज वेरी नेसेसरी टू इंप्रूव डायनामिज्म इन सर्विस, इंश्योर इफेक्टिवनेस, इंश्योर मोर अकाउंटेबिलिटी और स्पीडी रिस्पॉन्स भी आपको देना है. डिसेंट्रलाइजेशन इज द ओनली सोल्यूशन. एंड ई गवर्नेंस. फिर सोशल ऑडिट्स, इससे यू कैन अंडरस्टैंड इंपैक्ट्स ऑफ योर वेलफेयर स्कीम्स एक्सेट्रा, तो लोगों से समझ सकोगे कहां पे फेल वगैरह हो रही है. सो यू कैन अपडेट योर सेल्फ.
You can then change your policies dynamically, facilitate growth and community engagement. NGOs वगैरह कि उनको ज्यादा अच्छे से पता है भाई क्या लोकल प्रॉब्लम्स है, उन लोगों से कंसल्ट करो एंड बी द फैसिलिटेटर ऑफ द ग्रोथ. सो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें हर एक पे एक पॉइंट लिखते जाओ, एक लाइन, 8-10 पॉइंटर दिए मैंने, आराम से आंसर यू विल बी एबल टू राइट. सो अगेन वेरी गुड क्वेश्चन. सो बहुत टैकलेबल क्वेश्चन है. ओके बट पहले नॉलेज होना चाहिए. अब जिन्होंने बेसिक इथिक्स के ये सारी चीजें ही नहीं पढ़ी है, ओके पूरा मोस्ट ऑफ द कोचिंग में तो इथिक्स के लेक्चर पॉलिटी के पढ़ाए जाते हैं, पॉलिटी पेपर में, गवर्नेंस में. तो अभी मुझे कोचिंग क्लास का ही कॉल आया, मैंने इथिक्स पढ़ाना है. मैंने बोला कितने घंटे, दे सेड 35-40 आवर्स. मैंने बोला 35-40 में इथिक्स पढ़ाना है, इतना बड़ा सिलेबस है. तो उन्होंने बोला नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स वगैरह हमने गवर्नेंस एस्पेक्ट में कवर कर लिया. आई रियलाइज भाई इनके तो बच्चे गोइंग टू गेट स्क्रूड अप इन इथिक्स पेपर. कॉस्ट कम करने के चक्कर में गवर्नेंस में पॉलिटी का पेपर पढ़ा के या ये सारे इश्यूज पढ़ लिए. नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ वैल्यूज दैट आर नॉट इवन मेंशन इन सिलेबस लाइक डायनामिज्म एटसेट्रा टू डील विद सच अ क्वेश्चंस. सो टेक इथिक्स पेपर सेपरेटली एंड सीरियसली. और जिसको ये समझ में आया ना 140-150 इस पेपर में इस साल देखना, लास्ट कुछ ईयर से इथिक्स का टॉपर 130 के रेंज में रह रहा है, एक हाथ दूसरा एक्सेप्शनल, बट इस साल देखना 140-150 बहुत बच्चे स्कोर विल वेरी हाई, और केस स्टडीज तो बहुत ईजी थे. देन इट इज सेड दैट फॉर एन इथिकल वर्क कल्चर, अब इसमें पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मैंने एक लेक्चर पढ़ा है कोर्स में, हमारे सिलेबस का टॉपिक है हाउ टू इंश्योर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गुड कॉर्पोरेट कल्चर, वर्क कल्चर, पूरा उसी पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. सो इट इज सेड दैट फॉर इथिकल वर्क कल्चर देयर मस्ट बी कोड ऑफ इथिक्स इन प्लेस इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. कोड ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट टू इंश्योर वैल्यू बेस्ड एंड कंप्लायंस बेस्ड वर्क कल्चर. व्हाट सुटेबल मेजर वुड यू अडॉप्ट in your workplace? Okay, so to ensure value based, compliance based work culture, value based work culture and compliance. So compliance ये word पढ़ो तो accountability के system suggest करने आपको दिमाग में आना चाहिए. It talks about accountability, okay, and accountability ensure करने के लिए transparency automatically. and value based हो तो they are talking about ethical competence का part, training का part, value development का part. Okay, so दोनों कैसे करोगे? So basically then you should have very good code of ethics policy. मैंने लेक्चर में पूरा कोड ऑफ इथिक्स का एस्पेक्ट पढ़ा है, इथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसके कुछ पॉइंट्स लिखो. कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसी, ये भी कंप्लायंस इंश्योर करेगा. ओके, यानी क्या बिहेवियर एक्सपेक्ट है एम्प्लॉइज से, ओके, या ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से, वो पार्ट लिखो. देन इथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, स्क्रूटिनी मैकेनिज्म, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट्स, ओके, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स, इनफॉर्मल एस्पेक्ट्स, सब पे लिखो. एंड देन इथिकल कंपिटेंस डेवलपमेंट, इथिकल कंपिटेंस, ओके, पूरा एक सेक्शन मैंने क्लास में डिस्कस किया है. ओके, वैल्यू ट्रेनिंग, इथिकल ट्रेनिंग. अभी जो आपका यूपीएससी एग्जाम ले रहा है विच इज वन वे ऑफ इथिकल कंपिटेंस का मैकेनिज्म, इंटीग्रिटी टेस्ट एटसेट्रा. अच्छे लोग लो, उनको ट्रेन करो. ओके, इट विल इंप्रूव द वैल्यू लोडेड वर्क कल्चर. सो बस 8-10 पॉइंट आराम से यू कैन राइट इन दिस क्वेश्चन. ओके, एंड देन ये जो क्वेश्चन था दैट इंडिया इज अ इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर of the world as it has recently secured status of 4th largest economy of the world as per IMF projection. However, it has been observed that in some sector allocated funds remain either underutilized or misutilized. Question 2019 का repeat हुआ है. What specific measure would you recommend for ensuring accountability in this regard to stop leakages and gaining the status of 3rd largest economy of the world in near future? So basically इतना लंबा क्वेश्चन करके पॉइंट इतना ही है, how you can stop अंडर एंड मिस यूटिलाइजेशन. तो ये क्वेश्चन है, मैंने क्लास में डिस्कस किया था, 2019 या 18 के पेपर में आया था. इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड इज क्रूशियल टू मीट डेवलपमेंटल गोल्स. क्रिटिकली एग्जामिन रीजंस फॉर अंडर यूटिलाइजेशन एंड मिस यूटिलाइजेशन. जो रीजंस है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन पूछ रहे हैं इस साल. सो रीजंस मैंने दिए, सारे उल्टे करो, सॉल्यूशंस आ जाएंगे. ओके, पूरा मैंने वो आंसर जो क्लास में डिस्कस किया हुआ है या नोट्स में है यहाँ पे दिया है. सो रीजंस फॉर अंडर यूटिलाइजेशन सेपरेटली दिए, रीजंस फॉर मिस यूटिलाइजेशन दिए, ओवर एक्सपेंडिचर, साइपनिंग ऑफ फंड, सिस्टमैटिक लीकेजेस, कोलूसिव करप्शन, लैक ऑफ सोशल ऑडिट. तो उसको सिर्फ उल्टा करो, करप्शन वगैरह के मैकेनिज्म्स के सॉल्यूशंस दो, सोशल ऑडिट इंप्रूव कैसे करो, परफॉर्मेंस ऑडिट कैसे इंप्रूव करो, वर्क कल्चर कैसे इंप्रूव करो, ये सारी चीजें, फाइनेंस मैनेजमेंट ये कैसे इंप्रूव करो, एवरीथिंग. ओके, एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन. सो क्वाइट इजी पॉइंट्स वेर देयर.
सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन ए, वेरी इजीली टैकलेबल. कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है कि जो आंसर ही ना कर पाओ. और हर क्वेश्चन में इफ यू मैनेज टू राइट गुड पॉइंटर्स यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स. Okay, so thanks for listening guys, and for essay का analysis check out my YouTube का essay paper का lecture. Case study का also I will upload in 2-3 days. Okay, and also check out my join my UPSC Ethics 4 Telegram channel for getting more updates etc. And download my app Darshanik, link I have given below in the description. You will get a very comprehensive essay ethics course on my platform, and that will be one stop solution. It's very comprehensive 150-hour course that I keep on updating, and that will definitely help you do good. So thanks for listening guys, and stay tuned.